Yesterday we saw how to create Maven project. I don't think I have to revise again everything. So let's jump over to the next or you guys last image. अरे ये क्या आ गया? Sorry, not this one. ये batch one का ही है. So yesterday we saw Hibernate exactly क्या है, what actually it provides and what benefit we can take from it. So सिंपल भाषा में अगर आपको डेटाबेस की क्वेरीज नहीं आती, लिखना नहीं चाहते किसी भी रीज़न से, सो वी कैन गो फॉर दीज ORM टूल्स. सो अभी हम एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाएंगे. स्टैंड अलोन मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी जो कि हाइबरनेट है. इनिशियली हमने जब स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी बनाई थी तो कोड जावा की थी, वो उसमें कुछ नहीं था, है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट्स बाय द वे, इफ यू नॉट श्योर. This was one of the standalone application. In first web app, this was a web application. So यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिक्सचर था, यहाँ पे कोड जावा प्लस हम एक वेब टेक्नोलॉजी बनाते. तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन सर्वर जेएसपी का प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे भी आराम से यूजर से रिक्वेस्ट ले सकते हो थ्रू अ फॉर्म, और बैक एंड पे कोड ले सकते हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सेक्शन है, फ्रंट एंड और बैक एंड. सो व्हाट वी वर डूइंग बोथ सेक्शन, फ्रंट एंड बैक एंड. तो वहाँ पे एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाओगे तो वो काम कर रहा है. तो वहाँ पे आप डायनेमिक डेटा भी डाल सकते हो. कोड जावा में पॉसिबल है अगर आप स्कैनर क्लास यूज करते हो और यूजर्स इनपुट लो और उसी के अकॉर्डिंग अपने लॉजिक लिख दो. पर इतना टीडियस काम नहीं करना, अपने को सिंपल रखना चीज़ें. सो सेम थिंग वी विल अप्लाई हियर. We have started Hibernate application. So we have seen how to create Maven project in Eclipse. What is Maven we have covered, and we just got a glimpse of what is Hibernate. So which version we are going to start with? Hibernate 5. So it is famous for this ORM term, object relational mapping. So object is a term from Java, relation is a term from RDBMS, and mapping we know map these object and relational. That means map Java class and database table. So I gave you an idea what it looks like when we say mapping. So we have a Java class here, boy, which contains two attributes or fields or variables, whatever you call it. And then when we use Hibernate in between, so Hibernate will transform your class into a table and fields as a columns. So this is what Hibernate do technically for us, and that's why it got famous. Think about if you have to do the same in your code Java. I'm not sure how to do that. You have to write lots of code there in JDBC API. So first of all, you have to trigger one create, create query, and you have to make sure that you whatever field in your Pojo class has, you have to use them. Then you have to insert records and manage all the primary key and the stuff through your SQL queries, and that will make your task tedious. But by using Hibernate, it will be so easy. But yeah, you have to put some effort on its configurations. Okay, so we'll see that. So let's start with application. So we are talking about how to create Hibernate. That's the only theory I'm going to cover from Hibernate. Rest definitely you can search on its official site or any documentation from any site. I don't mind it. So theory, that's it. Hibernate do what? It will act as a mediator between us and the database. जो भी आप डेटा दोगे वो बीच में इसको ट्रांसफॉर्म करेगा और डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा. और ऐसा नहीं है कि इंसर्ट करना, हम डेटा गेट भी कर सकते हैं. दैट मीन्स ऑल CRUD ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म थ्रू दिस हाइबरनेट फ्रेमवर्क. Okay, so when we are talking about Hibernate app in Eclipse. So first thing we already know, create a Maven project. That we have already done. So still I'll write that. Create a Maven, oops, Maven project. This is done. Then add um, Hibernate and MySQL related, what do you call that, dependencies. Add Hibernate and MySQL dependencies. Related. So that we have done here. Let me show you the POM file. Where inside POM file. This is from previous project. Let's terminate and remove all this. So open the pom.xml tab, and there we are using dependencies.
Okay, so second step is also done. We have added dependencies. What's next? Add a Pojo class. Okay, what is Pojo class? Shubham, what is Pojo class? We have discussed about it, right? Pojo class? ये सर बताया था आपने सर कल। हाँ तो बताइए मुझे फिर आप। मैंने बताया था तो। पर याद नहीं। नहीं, क्यों याद नहीं है? ओके, खुशबू, प्लीज टेल मी व्हाट इज पोजो क्लास। जल्दी जल्दी। सर पोजो क्लास, सर मुझे भी नहीं याद है। अच्छा, विपिन आप बताइए पोजो क्लास क्या होता है? फुल फॉर्म में बता दो कोई, तुम दोनों में से। सर वो जो क्लास जो होता है वहाँ पे हम लॉजिक नहीं लिख सकते, नॉर्मली हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए, जिससे एक फुल सिंपल फॉर्म। सा प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लास है सर। हाँ, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट का। राइट, प्लेन ओल्ड। फुल फॉर्म तो इसकी प्लेन, देखो मैं माइंड नहीं करूंगा अगर आप देख के मुझे बताओगे। मैं तो कहता हूँ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे गूगल पे देख के बता नो दो, सर, देख कर है नहीं ना? अरे बताया। तो मैं तो कह रहा हूँ बता दो। अरे गूगल कर लो, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्या होगा? नहीं रिपीटेशन, रिवीजन ही तो होगा। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग रिवीजन। मैं अपनी बैच में मैंने कहा ना स्टार्टिंग में भी कि एग्जांपल चाहिए, गूगल से कॉपी पेस्ट करके ले आओ, मुझे कोड रन करके दिखा दो। इससे आप लोगों को फायदा होगा, जब आप कॉपी पेस्ट करके एटलीस्ट जब कोड रन करके कुछ तो नजर जाएगी। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही आलसी है, जिसको कोड नहीं लिखना, उनके लिए भाई तो कॉपी पेस्ट कर ले, लेकिन कोड लिख के ले क्या? 10 बार जब कॉपी पेस्ट कर लेगा ना तो अपना सिंटेक्स आइडिया हो जाएगा। अच्छा, पब्लिक के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद नाम लिखते हैं, क्लास के बाद कर्ली ब्रेस आता है। इतना दिमाग में ऑलरेडी छप जाएगा। वी आर ह्यूमन बीइंग, कैसे दिमाग काम करता है, 50 बार चीजें देखेंगे, दिमाग में छप ही जाएगा, उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। सेम लाइक अगर मैं कोई टॉपिक पूछ रहा हूँ, गूगल कर लो। मैं फ्री हैंड दे रहा हूँ, कर लो गूगल, पर मुझे पढ़ के बता तो दो। मुझे यहाँ तो समझ में आया कि आप लोग पढ़ के भी समझा सकते हो, नहीं समझा सकते। अदर हो क्या रहा है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं हम लोग। वाई यार, सबको पता है कुछ ना कुछ चीजें। तो वो जो चीज़ रिवाइज करोगे वो रिपीट रहेंगी, तो दिमाग में ज़्यादा रहेगा। सो या पोजो स्टैंड फॉर प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। इट मीन्स अ क्लास विथ प्राइवेट फील्ड्स एंड पब्लिक गेट एक्सेट्रा। वी डोंट सी, विपिन तुमने कहा कि हम इसमें लॉजिक नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है, लॉजिक लिख लो पर वो आपकी पोजो क्लास नहीं रहेगी। तो नहीं लिख सकते ऐसा नहीं है, लिख दो, पर दैट वोंट बी काउंटेड एज ए पोजो क्लास। इट जस्ट लाइक इसे कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अपनी किसी क्लास को पोजो क्लास कह रहे हैं, तो वो पोजो क्लास तभी उसको बोलेंगे जब उसके अंदर प्राइवेट फील्ड्स होंगे, पब्लिक डेटा सेटर होंगे, कंस्ट्रक्टर होगा, टू स्ट्रिंग मेथड होगा, खत्म। इसके ज़्यादा हम उसके अंदर बिजनेस लॉजिक ऐड नहीं करते। इन सिंपल वर्ड्स, वी डोंट यूज और ऐड business logic in our Pojo class. By chance, if you put any logic inside it, any business logic, that means it's not a Pojo class anymore. So that will be act as a your service layer or a business logic class. So Pojo class सेट करनी है। हाइब्रिड में Pojo class को बोलता है कि मैं Pojo class नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा entity class. Okay guys, so Pojo class हमने कोड जावा में यूज किया था। Now Hibernate calls is entity class. Same stuffs, private fields and public getters and setters. In short, I'm writing getter setters. Okay, now let's do this first. So going back to Eclipse, uh, this is the place where we write code. So I'm going to create a package. I have seen someone was not using package. Guys, why you are not using package? इतनी भी क्या जल्दी है क्लास लिखने की? मतलब पैकेज नहीं बना रहे हो? मुझे नाम याद है, कल देखा था मैं, बोलना भूल गया उस टाइम, मुझे अभी याद आया। किसी ने पैकेज नहीं बनाया और लिखा तो अजीब सा नाम लिख दिया। आराम से लिखो कोड, क्या जल्दी हो रही है? कहीं लिख के भागना है कहीं? आराम से लिखो, टेक योर टाइम। So I'm going to create a package com.pack.entity. Again, you are free to use any name, but make sure everything should be in small letters and separated by dot operator. ठीक है, तो com pack entity ऐसा मैं नाम यूज कर रहा हूँ। अब to you, कुछ भी यूज करो, पर खुद कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या लिख के भूल गए हम, है ना? Okay, so now we have a package. Let's create a simple Pojo class. So, or entity class now. Now I'm going to call it entity classes. Forget about Pojo. Pojo is done with the core Java. Now we are going to use entity classes. Hibernate deals in entity class. That's it. Okay, so take the same example boy I've created in that image. So I'm going to create a class boy. Done. And what was the field there? So let everything will be in sync. ID and name. Okay. So let's create private int ID and
string will be name. Okay, let's generate some getter setters. Done. So our Pojo class or entity class is ready. For now, we'll keep it simple. But again, this is just a regular class, a regular Pojo class. How it becomes entity, we'll see that. So this is the third point. We are done with third point. So let's move it. Come on. Okay. Let's move the third point here. So this is a Pojo class. It's not completed yet. We have to fill some more things. So from Pojo 2, it becomes entity class. So things remain same. It has the same feature like Pojo has, but we need to add some more features. So it becomes entity class. So Hibernate can recognize it. Okay. So for now, let's put this hold on, third point. Let's move to fourth step. Step 4 says um, configure Hibernate configuration file. And fine. So this is kind of a tricky step for beginners. So the file name is hibernate.cfg.xml. Okay guys, so this is the file name which you have to configure. Now you will ask from where we will get this file. Ideally I should copy from previous project and do that to you in front of you guys. But let's see this in case if I'm very new, I don't know how things are working. So how to get this file? So I'll say this file. Okay, and it should take us its official site, GitHub. Okay, JBoss site. That's how your XML file looks like. Okay, XML file again, guys. See, again we are dealing with XML file. POM file is already there, which is in XML format, right? One more XML file we are adding. So that's why we should be very good in XML files, how it works and how to process it. So by the way, XML header which tells us this file XML. Again, it's quite optional. Then document type, again it's a part of standard XML annotations that this is XML file. Here it starts with, you can say, root tag Hibernate configuration. Okay, then we have a subtag session factory. Then it has some more subtags property, and if you notice, these properties are something which you have used in your core Java JDBC API, like connection. It's not completed here. So something similar your XML file looks like. So from here you can use it and of course configure it as per your requirement. So now I will go back to my previous project. So I'm just give you idea from where you can get the XML file in case you are new to your this Hibernate journey. So I won't spend time here. Batch 12, day 2 is fine. Let's extract here. I will open project, src, main, resources. I told you that there we keep these, configuration files. So let's copy this. Going back to our project, where we keep configuration files inside resources. So right click and paste. Okay, so we just pasted a configuration file. Let's open and see what it has. So if you see most of the thing you will get it, at least some of the lines you can get it easily. Okay, so what we have here, driver class, which is com mysql jdbc driver, url jdbc colon mysql localhost, some database name, then username and password. This we have done in jdbc API, right guys? So you have to give your database connection information. We are not going to create any Java file for this. We are done with the Java files where we keep the configuration, at least for database. This is the most practical way of keeping database connections. So there it is, the property tag. Then rest of things matters, but not for now. So whatever contents are below, just keep it there and don't worry about them, what these are. But I hope first 4 lines are making sense. So just focus on these 4 lines. And now we have a 4 step ready. We are done with 4 step as well.
You might have multiple questions, so hold on for a while. Let's run this code, then you can come up with your questions. Okay, okay, I missed this image actually. Save, it should be 2.1. Let I'll refactor it. So, okay, this is 4 step where we have to configure Hibernate file. It might look big, but once you write this code by your own, so you will see, okay, this is nothing, just 4 5 lines, which makes sense why we are writing them. Okay, let's move to next stage or step. Step 5 says it's quite simple. Map the boy entity class in hibernate.cfg.xml file. Not bot, it's boy. This is step 5. So it's quite straightforward. You have to open the XML file and this configuration file and give the fully qualified name, mapping tag, and it has a subtag class, and then you have to give the fully qualified name com pack entity. And once you have this, you can cross check by holding control button over the mouse. If it becomes a hyperlink, that means you have given the correct path and it will take you there. So this line you have to add in the configuration file to register or you map the entity class. That's how we do this. So step 5 is also done. Step 6 is quite critical because we are about to load all the information, whatever in our configuration file, whatever we have in our entity class, all that information we have to load. So step file takes some code which I won't explain today. Tomorrow I will explain the code, but that will be a kind of a big code for starters. So let's go back to previous classes. I have taken src main java com pack utils. This class I need. Okay, so I just copied that class. Going back to our project structure, whatever we are doing, it's just one time thing. Maybe right now saying, okay, we just for storing or converting this boy class to a table, we are doing lots of stuff, but that's a one time thing. You don't have to repeat all these steps again. Next time when you have to do this, just create a class, register it, and it's done. But for starting, you have to set up your project. So what we are doing right now, setting up Hibernate application in Eclipse. Okay, so we have a package com pack entity. Let's create one more package. Package. Let's call this com dot pack dot, call this utils. Okay, and here I'll say right click, uh, paste. So it has pasted Hibernate utils class. Let me show you how it looks like. This is the code you have to put to load all the information. All the information means POM file, not POM file. When you run this code, it will load all the information from configuration file and whatever entity class you have, which you have mapped right here. So this class is responsible for that operation. Okay, so step 6 is this, done. So what we have to say for step 6, create a utility class to load all info from hibernate.cfg.xml file and load all entity classes, because this is not the only thing you have to do. You have to create lots of entity classes. So create a utility class to load all info from the configuration file and load all the entity classes. Fine, present in configuration file. So step 5 and step 6 is done. 4. Last step towards is calling tester. So we have to say
7 is create a tester class to map entity class into a DB. Okay, so this is our final step where we will create a tester class and map this boy class into database. So first of all, let me fix this database name. It's batchwell something. So let's remove this database and we'll call this something we have used earlier, can batch1 underscore db. Okay, so can underscore batch1 underscore db. Can batch1. Okay, typing can batch1 db. Okay, so file is good and that's it. Everything looks fine to me. We will see what these things are. By the way, I've already commented them, why we are using them, but later we'll discuss about it tomorrow. Okay, tomorrow we will discuss all these things, why we are doing stuffs. Okay, so last step is tester. So let me create one more package for tester, com.pack.tester. Let's call this boy tester. Name your class properly, capital B, capital T. Okay, when it comes to tester, since we don't have any UI, so we have to rely on main method. Okay, now it has multiple lines. It has its own steps, you can say sub steps. So first step says you have to start a session factory. So say instantiate the session factory object. Okay, so it goes like session factory. Okay, why I'm wasting time here? Let's not write these stuffs. Let me pick some code from previous class to save some time. So Java main, Java com pack. Okay, we have tester, boy tester. We already have boy tester class. That's good. So first is create this object. Okay, so instantiate the session factory. This we already have done. Let's move from here. So we remember when we were working with core Java. So we created not core Java. I think here inside this project. So here we have created a package utils. We have created a class MySQL connection which is giving us database connection, right? And we were using this connection method, get DB connection method, somewhere, I don't know, maybe login connection servlet. Yeah, there it is we are using. So anyone knows why we have created this MySQL connection class in servlet? Coach, you tell me why we have created this separate class for MySQL connection. What was the reason? Hello? सर क्योंकि हम इसे बार बार यूज करेंगे तो हमने इसीलिए इसका सेपरेट क्लास बना लिया. राइट, बिकॉज यहाँ पे रीयूजेबल कोड कर रहे हैं क्योंकि ये जो कोड है डेटाबेस कनेक्शन यस ये सर, मल्टीपल एनी सर्वर टाइम में यूज यूज होगा होगा. ना, तो it's better to create this class so we can reuse it multiple times. Something similar we have done here. Inside this Hibernate utils, let's close this project again. So inside this Hibernate utils class, you can see the name. It says giving this name I'm talking about, session factory. So we have a method get session factory. What's happening inside? Leave it, but ultimately we get an object of session factory. So we need this object multiple times. If you won't create it, so you this kind of code you have to write again and again. This is quite different code, so we don't want to do that again and again. So thing is just import that class, sorry, this method from this class. सेशन फैक्ट्री क्या होता है? क्या विपिन दोबारा बोलिए. सेशन फैक्ट्री क्या होती है सर? सेशन फैक्ट्री एक इंटरफेस है, अभी बताया ना, अभी बस थोड़ा फॉलो करो कि बस ऐसे ऐसे होता है क्या है क्यों है, थोड़ा सा रुक के बताऊंगा ना, अभी बहुत सारी चीज़ कवर करनी है हमको. तो for now session factory is one of the interface provided by Hibernate which gives you session. See, the end goal is uh,
अब प्रॉब्लम ये है कि आपको डेटाबेस समझ में आना पड़ेगा कि डेटाबेस कैसे काम करता है। तो इफ़ आई गिव यू आइडिया, रफ आइडिया, लेट मी गिव यू वन रफ आइडिया। सो रिवर्स में कोड लिखता हूँ कि जब भी आपको डेटाबेस में कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, है ना, जब भी कोई भी आप टास्क परफॉर्म करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्वायर a transaction thing, you know, we call this a transaction कि कोई भी एक task perform करा, either it could be select, insert, update, delete, we count that as a transaction. So we have to do that transaction in Hibernate. If you want to do this transaction, you have to acquire session interface object. Yeah, this is again one of the interface present inside the Hibernate. So to perform transaction you have to acquire or obtain better term है आप लोगों के लिए, सेम मीनिंग है ऑब्टेन और एक्वायर, ऑब्टेन सेशन इंटरफेस ऑब्जेक्ट। ओके, ये काम करना है आपको। और इसको सेशन इंटरफेस को ऑब्जेक्ट लाने के लिए यू हैव टू एक्वायर और ऑब्टेन सेशन वेक्टर इंटरफेस। तो एक चेन बनी हुई है, पहले हमको सेशन फैक्ट्री डालना पड़ेगा, उस सेशन फैक्ट्री से हम ऑब्टेन करेंगे सेशन, और उस सेशन से स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये वर्क करेगा एट डीबी लेयर। ठीक है, इससे ज़्यादा भी बता नहीं पाऊंगा, समझ में नहीं आएगा। इनिशियली मैं ये बात कर रहा है एक डेटाबेस के बारे में। कोई भी एक टिपिकल डेटाबेस होगा, उसमें जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वी कॉल दिस एज अ ट्रांजेक्शन परफॉर्म। सो जब ट्रांजेक्शन करना होगा हाइब्रिड के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली हाइब्रिड इज ऑल अबाउट डेटाबेस, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो हाइब्रिड पे, सो दैट यू कैन डू इन अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। वहाँ पे क्लासेस एंड मेथड्स इसमें डील करेंगे आप लोग। तो व्हाट दीज गाइज डिड, जिन्होंने ये हाइब्रिड डेवलप करा, दे थॉट कि ओके, डेवलपर एक आया, उसको नहीं पता डेटाबेस में क्वेरीज कैसे लिखी जाती है, बट दैट डेवलपर इज रियली गुड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब आपको क्लास, मेथड, इंटरफेस, वेरिएबल्स, रेफरेंस, जो भी कंडीशंस है जावा की, सब आपको अच्छे से आती है। सो दे सेड ओके, वी विल गिव देम अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू डील विद डेटाबेस। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में से ट्रांजेक्शन है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे देंगे। ट्रांजेक्शन आपको चाहिए तो आपको सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और आपको सेशन चाहिए तो सेशन फैक्ट्री। और सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, वो उस खतरनाक क्लास में लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा। ये इस तरह से हमको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलता है। तो समझ जाओ, बस समझ लो एक सेशन फैक्ट्री जैसे हमारे पास डेटाबेस में कनेक्ट करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ JDBC API की, सो व्हाट वी हैव हियर, अर्लियर वी वर ट्राइंग टू सेलेक्ट रिकॉर्ड। तो हमने ये काम किया था डेटाबेस पे, हमने एक क्लास लोड की थी MySQL की, ये हाइब्रिड खुद से कर रहा है। वी हैव क्रिएटेड अ कनेक्शन, ये भी हाइब्रिड खुद से कर रहा है। पर इतना करने के बाद हमें डेटाबेस क्या दे रहा है, और JDBC पे क्या दे रहा है, एक कनेक्शन। ठीक है विपिन, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक कनेक्शन मिला था इतना करने पर। सेम थिंग यू कैन से कि कनेक्शन इज काइंड ऑफ, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, पर अभी समझने के लिए इसको कह लो कि जो JDBC में हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, सेम थिंग हमें मिलता है सेशन फैक्ट्री से। ठीक है, तो जो कनेक्शन हमारा JDBC API में है, सेम सेशन फैक्ट्री हमारा हाइपरनेट API फ्रेमवर्क में है। तो जो कनेक्शन आप एक्वायर करोगे इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करके, जहाँ पे आपने ड्राइवर का नाम दिया, URL, डेटाबेस नेम, पासवर्ड जो भी था सब दिया यहाँ पर, और आपको अल्टीमेटली कनेक्शन मिला। जैसे ही आपको कनेक्शन मिलेगा, आप बहुत सारे क्वेरी चला सकते हो। समथिंग सिमिलर वी आर डूइंग हियर, वी नीड टू ऑब्टेन अ सेशन फैक्ट्री, दिस इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू कनेक्शन। सो वंस वी हैव सेशन फैक्ट्री, और ये एरर क्यों दे रहा है, इंपोर्ट तो करा हमने फ्रॉम हियर, सेव नहीं किया, ओके। ठीक है, सो वी गॉट द कनेक्शन टूवर्ड्स हाइपरनेट। अब इसमें थोड़ा सा स्टेप डिफरेंट है, क्योंकि ये तो फ्रेमवर्क है काफ़ी बड़ा। सो नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको ऑप्टेन करना है सेशन ऑब्जेक्ट। सो फैक्ट्री इसका रेफरेंस है, आई से फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन एंड दिस गिव्स मी सेशन from again Hibernate. Make sure you're from where you're importing. See, we have lots of sessions, so make sure you're importing from Hibernate, and session object आ गया। अब सेशन आ गया, सो व्हाट वाज दैट इमेज, व्हाट इट वाज सेइंग कि पहले सेशन फैक्ट्री लेकर आओ, फिर सेशन लेके आओ, और फिर ट्रांजेक्शन। तो सेशन फैक्ट्री हमारे पास मिल गया, जो कि इक्विवेलेंट कनेक्शन के। सेशन आ गया, जिसकी हेल्प से हम ट्रांजेक्शन लेके आएंगे, और जैसे ट्रांजेक्शन मिलेगा हम अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हैं। गुड थिंग इज यू डोंट हैव टू राइट द क्वेरी, ये अपना मिल जाएगा। वी हैव रेफरेंस फॉर सेशन, सो सेशन डॉट open, no, it says begin transaction. Now you have a transaction object from again Hibernate. JDBC मत पिक कर लेना, गड़बड़ हो जाएगा। And once we have transaction, we can say transaction dot begin. बस ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं।
अगर आप एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं हाइबरनेट के। ओके, कमेंट्स में वहाँ से ऐड कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बचाते हैं। सो गेट सेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस क्लास, देन स्टार्ट ट्रांजेक्शन, डन। व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करना है, कुछ लास्ट के स्टेप्स है वो निकाल कर रख लेता हूँ मैं, जैसे कि चलो इसके बाद में कर लेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी सॉरी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्रांजेक्शन। व्हाट एल्स यू हैव टू डू, फर्स्ट स्टेप वुड बी, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है एंटिटी क्लास, इसको सेव करना डेटाबेस में। तो हम हमारे पास ये क्लास है बॉय, सो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे विद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बॉय दिस, क्योंकि हमें फील्ड को इनिशियलाइज भी तो करना है। तो एक काम करते हैं, अब इसको नहीं करते, ठीक है, थोड़ा कुछ दिखाता हूँ आपको एक्स्ट्रा चीज़। और ये जितने भी सेशन हमने स्टार्ट किया या फिर सेशन स्टार्ट किए उसको क्लोज भी करना होगा। सो वी कैन डू सेशन डॉट क्लोज, नॉट क्लियर, क्लोज एंड फैक्ट्री डॉट क्लोज। ठीक है, इतना काम करते हैं। अभी कुछ नहीं कर रहे, बस हमने सेशन एक्वायर करा, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी, पर कुछ करा नहीं उस ट्रांजेक्शन में, हमने कोई भी क्वेरी डेटाबेस को सेंड नहीं करी, और बस सेशन क्लोज कर दिया। इतना काम किया हमने इनिशियली। ओके, दिस इज ऑल्सो डन है। क्रिएट अ टेस्टर क्लास टू मैप एंटिटी क्लास इनटू टीबी, ये अभी हुआ नहीं है, मैप नहीं करा हमने, सिर्फ मैं आपको कनेक्शन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखेगा कंसोल पर, जो इक्लिप्स का कंसोल है। तो मेन मेथड है ये ऑलरेडी, तो रन करते हैं। सिंपल राइट क्लिक करना है, रन एज करना है और एप्लीकेशन करनी है। अभी एरर देगा, ये को क्या बोल रहा है ये, ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एक्टिव। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रांजेक्शन से बिगिन कर ही रहे हैं, तो दो बार करने का मतलब नहीं बनता, एक बार ही बात है, या तो वो या तो ये। ठीक है, तो वापस से रन करते हैं कोड को, run as application. Now we will get some error. Cleaning up connection pool. अभी एक्चुअली ये रजिस्टर तो होने होगा क्लास, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि 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 वी हैव नॉट व्हाट यू कैन से मैप दिस बॉय क्लास प्रॉपरली। दिस इज स्टिल जस्ट अ व्हाट यू कॉल से, इट्स जस्ट अ प्रोजेक्ट क्लास। मैंने स्टेप से रोका था ना आपको, ये करने के लिए पेंडिंग रह गया अभी। दिस इज जस्ट अ रेगुलर प्रोजेक्ट क्लास। सो हाउ टू कन्वर्ट दिस प्रोजेक्ट क्लास टू एंटिटी क्लास, वेल यू हैव टू यूज सम एनिमेशंस, बहुत सारी नई चीज़ें, इसलिए मैं इसको ज़्यादा क्या बोलते हैं पढ़ाना नहीं चाह रहा इसके अंदर और चीज़ें। सो व्हाट वी आर अप टू, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस प्रोजेक्ट क्लास टू एन एंटिटी क्लास, एंड दैट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट यू हैव टू डू, जो आपकी क्लास है, क्लास का नाम, उसके टॉप पे आपको एक एनोटेशन लगाना है, एट एंटिटी, दिस वन। ठीक है, दिस मार्क्स दैट दिस बिकम्स अ प्रोजेक्ट एंटिटी क्लास नाउ। सिर्फ इतना करना है आपको, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं करना। आपके जो भी क्लास बनाया है प्रोजेक्ट क्लास, उस क्लास के जस्ट टॉप पे जाके आपको एक एंटिटी मार्क करना है, एट एंटिटी। कहाँ से इंपोर्ट करना है ये, जावा एक्स डॉट persistence डॉट एंटिटी। ये करने पर हाइबरनेट से पिक करेगा कि ओके दिस इज नाउ अ एंटिटी क्लास एंड आई नीड टू डू सम मैपिंग ऑफ दिस क्लास इन डेटाबेस। इतना चेंज करने के बाद एक बार वापस से रन करते हैं इसको, टेस्टर क्लास को। सो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। ओके, नाउ वी आर गेटिंग द एरर। जैसे ही हाइब्रिड को पता चला कि ओके वी आर यूजिंग एंटिटी क्लास, बट इट स्टार्ट्स गिविंग यू एरर। व्हाट इट सेज, no identifier specified for entity. Now see, hibernate is picking up as entity class, so it's saying कि identifier missing है for this entity class. Identifier क्या होता है, anyone, any guess what this is? Identifier, आई नो मैंने कवर नहीं किया, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई गेस करना चाहेगा एंटिटी क्लास, एंटिटी के अंदर आइडेंटिफायर क्या चीज़ है? नहीं गेस करना, बोलना भी नहीं है, मत बोलो, it's fine. So we are getting this error, identifier, it means someone saying something, कुछ वॉइस आता है मेरे को, no, okay, so here primary key is missing,
Okay, that's why it is giving error. Think about when you're going to create a table, we always tend to give a primary key. हमने जब डेटाबेस में टेबल बनाया था एक पेन का था, डेमो किसका था, उसको कह सकते हैं राइट क्लिक, टेबल इंस्पेक्टर पे जाओ और यहाँ पर कॉलम्स पे जाके आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंडेक्स लगा के रखा है प्राइमरी की। प्राइमरी की किस कॉलम पर है? आईडी। कॉलम हमारे पास आईडी और प्राइस है, ब्रांड आईडी प्राइस। सो व्हाट इंडेक्स वी हैव यूज्ड? प्राइमरी की। तो जब भी आप टेबल बनाओ, प्राइमरी की एक मस्ट है, आपको बनाना चाहिए ताकि आपकी टेबल प्रॉपरली वर्क करे, थोड़ा रिट्रीवल उससे फास्ट हो। थिंग इज हाइब्रिड ऑल्सो फॉलो द सेम पैटर्न। इट सेज अगर आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो प्राइमरी की तो आपको देनी ही है, और ये कह रहा है नो आइडेंटिफाई स्पेसिफाइड, सो प्राइमरी की इज मिसिंग। सिंपल भाषा में इसमें आइडेंटिफाई मतलब है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की मिसिंग है इसलिए इसने एरर दे दिया। तो कैसे ऐड करेंगे? अगेन वी हैव अ सॉल्यूशन, वी विल यूज दिस आईडी एज अ प्राइमरी की। कैसे कैसे मार्क करोगे कि प्राइमरी की है? एट आईडी लगाकर, बस। अब आपका ये क्लास is properly known, can be known as entity class. Okay, so हमने अपने एक सिंपल प्रोजेक्ट क्लास को एंटिटी क्लास बना दिया by using two annotations. Annotations क्या होते हैं पढ़ के आइएगा, this is going to be one example homework for you guys कि entity नहीं annotations क्या होते हैं. So in this example we have used two annotations, at entity and at id, this and this. ओके सो लेट्स इन द कोड। तो देखते हैं क्या होता है। टेस्टर पे गए, राइट क्लिक किया, रन एज एप्लीकेशन। ओके, फिर से हाइब्रिड एप्लीकेशन सर्विस का रन करेगा। और गाइस आप लोग देख सकते हैं इसने एक टेबल क्रिएट करने की क्वेरी ट्रिगर कर दी। किसने? हाइब्रिड ने। वंस यू आर डन विद द कोड इट विल डू दिस थिंग। तो हमने सिर्फ इसमें इतना कोड लिखा है। अगेन गोइंग बैक टू टेस्टर क्लास, यहाँ पे सिर्फ इतना कोड है, कुछ भी बॉय क्लास से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, है ना? कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने सेशन फैक्ट्री स्टार्ट करी और क्लोज करा है। सो जैसा मैंने कहा था कि जैसे ही सब हाइब्रिड का सर्वर कह लो या फिर इसका जो इंजन है, हाइब्रिड का इंजन, उसने डिटेक्ट किया कि कोड रन हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेगा, जितने भी इसके अंदर एंटिटी क्लासेस हैं उसको चेक करेगा क्या इनके पर्सपेक्टिव या रेस्पेक्टिव कोई क्लास डेटाबेस में बनी है या नहीं बनी। सो इस क्लास में और इस डेटाबेस में, जो माइस्क्ल डेटाबेस है, इस डेटाबेस में तीन ही टेबल हैं, डेमो, पैन और यूज़र। बॉय नाम से कोई टेबल नहीं थी। तो इट what does it do? It creates a new table. अभी नहीं है क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया। So let's refresh this on the table, right click and refresh all. Refresh किया and now we have a boy table. Right click and select rows. So that's how it looks like. See, हमारे पास एक सिंपल पोजो क्लास थी, हमने उस पोजो क्लास को एंटिटी क्लास बना दिया और एंटिटी क्लास को हाइब्रिड ने मैप कर दिया। तो जो भी हमने किया था प्रूव हो गया। पर इस वाली जो फर्स्ट इमेज क्रिएट की थी कि एक बॉय क्लास था, आईडी नेम, बॉय बिकम्स टेबल नेम एंड आईडी नेम बिकम्स कॉलम नेम्स। ये रहा उसका आईडी नेम एंड बॉय। सो इतना काम हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट क्वेश्चन तो बताओ फिर, वरना फिर आगे बढ़े। वैसे क्वेश्चन बहुत होंगे, या तो कुछ नहीं आ रहा होगा या सब कुछ आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें पढ़ाऊंगा नहीं आज। सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल बना के दिखा दिया आपको, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो दिखा दिया। स्टेप फॉलो करिएगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। कहीं अपना दिमाग लगा लिया तो भाई ज़रूर ब्रेक होगा। फिर कल आप यही बोलोगे कोड चल नहीं रहा, क्योंकि आपने ज़्यादा सोच लिया। ज़्यादा नहीं सोचना, जितना करो उतना फॉलो करो। एज ए सेड, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो मी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ। उसके बाद आराम से आपका बाकी का जो है ना प्रोसेस वो इजी रहेगा। सो प्राइमरी की इज मिसिंग, टू फिक्स दैट वी हैव एडेड at id annotation. Fix for this. सर Yes Pippin, बोलिए। सर ये जो हमने वाइट टेस्टर क्लास बनाई थी, हाँ जी। सर उसे पता कैसे चला कि हमें वहाँ पे मतलब हाइबरनेट में जाकर डेटाबेस में जाकर बॉय क्लास की मतलब बॉय टेबल बनाना है इसको नहीं, इसको मतलब। तो इसने बस क्या करा, इसने गेट सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ना, ये वाला मेथड। ये सेशन फैक्ट्री क्या है? ये यूटिल्स में पड़ा हुआ है जो हमने बनाया था, हाइबरनेट यूटिल्स। ये जो क्लासेस बनी है इनका काम ही यही है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करना। ठीक है, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, फिलहाल एक एक फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, वो है हाइबरनेट सीएफजी फाइल। और यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा तो है कि किस क्लास को मैप करना है, बॉय क्लास को। यहाँ हमने इन्फॉर्मेशन देकर तो रखी है कि इस बॉय क्लास को पिक करो। तो स्टार्ट कहाँ से ओके होगा? सर, ये टेस्टर सब क्लास ऊपर से, लिखा है हुआ। ना? तो
थिंक अबाउट, ओके थोड़ा सा टाइम लो, वापस समझो। स्टेप वन में क्या किया हमने, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, ये बनना स्टार्ट होता है, ये जाएगा पहले इस हमारी हमारी कस्टम क्लास के पास। ये जो पूरा कोड लिखा है ये अल्टीमेटली हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है। इतना समझो कि सारी फाइल का काम ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी है हमारी सोर्स फोल्डर पे, वहां से रीड करना है। इसे रीड कर लिया, डेटाबेस का कनेक्शन आ गया। कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है वो बाद में देखेंगे। लास्ट में हमने बताया है कि कौन सी क्लास को मैप करना है, तो वो ये रहा। अब जैसे ही इसको ये मिलेगा तो ये इस क्लास को ओपन करेगा, हाइबरनेट का इंजन, और डिटेक्ट करेगा क्या ये एंटिटी क्लास है। बोला हाँ है, क्योंकि क्लास इज मार्क विद एट एंटिटी एनोटेशन। क्या इसके अंदर प्राइमरी की है, इनिशियली नहीं था तो एरर आ गया, अब मिल गया तो इसको ही मिल गया, तो नाउ दिस क्लास बिकम्स अ एंटिटी क्लास। नेक्स्ट इज, अब इसको मैप करना है। तो वो इंटरनल प्रोसेस है, दैट्स वाई हाइबरनेट फेमस, कि आपके एक प्रोजेक्ट क्लास दो, इसको मैप कर देगा। तो आपको डेटाबेस में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जाके बस उसका पाथ दे दो, ये सब क्रिएट कर देगा, जो भी कॉलम्स वगैरह सब मैप कर देगा। ये तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल है, आगे आप और कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाऊंगा तो वो सब हाइब्रिड बहुत आराम से यूज कर लेता है। बस आपको प्रॉपर जगह पे कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है। ठीक है फिर, ओके सर। ओके तो टेबल बन गया। अब इसमें रिकॉर्ड नहीं है, है ना, एम्प्टी टेबल बन के आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। अगर इतना हो गया है तो क्या करो, एक बॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो उस टेस्टर क्लास में जहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे जाके एक बॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू बॉय, और लिख दो बॉय डॉट सेट। सो गाइज यहाँ है एक्चुअली सेटर और गेटर का यूसेज। सो यहाँ पे हम सेट करेंगे आईडी, लेट्स से 1, और सेट नेम यहाँ पे कर देंगे मनन। मनन नहीं आया ना, उसका रजिस्टर कर देते हैं हम लोग, उसको पता नहीं चलेगा कि रजिस्टर्ड इन डेटाबेस। सो वी हैव आईडी एंड नेम ऑफ दिस बॉय। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको सेव करना पड़ेगा। हाइब्रिड को बताना पड़ेगा कि वी हैव अ एंटिटी क्लास, नाउ यू नीड टू सेव इट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, सेशन जो हमने यहाँ पे बनाया था ये, दिस इज नोन एज हार्ट ऑफ हाइब्रिड फ्रेमवर्क गाइस। सेशन इज अ हार्ट ऑफ, okay, this you can say the whole full functional body, and session is in heart, session is the heart of this factory। ये फैक्ट्री है, यू कैन से सेशन फैक्ट्री इज लाइक अ ह्यूमन स्केलेटन, पूरा उसमें पूरा हड्डियां वड्डियां सब कुछ सारे बॉडी पार्ट्स हैं। जो उसका हार्ट है वो है सेशन। अगर आपके पास सेशन आ गया, आप भाई हाइब्रिड में सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो वी ऑलवेज नीड टू दिस गेट दिस सेशन ऑब्जेक्ट फर्स्ट। जब हम स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेंगे वहां भी इस चीज को देखेंगे, पर वो सब चीजें होंगी एब्स्ट्रैक्टेड, सब कुछ हिडन होंगी। हाइब्रिड तो सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, वहाँ ये सब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ सेक्शन सेक्शन फैक्ट्री बन गया। तो इसलिए मुझे आपको यहाँ पे बनाना बता के दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं ये सब स्किप करके सीधे स्प्रिंग बूट पे लेके आया था। पर वहाँ पे आपको जब ऑब्जेक्ट बनकर दिखेगा कि वहाँ तो सिर्फ प्रॉपर्टीज वाले में एंट्री करी, डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट हो गया, और ऑब्जेक्ट बन के जा रहा है, सेव भी हो रहा है। पर कैसे हो रहा है वो सारा कुछ यहाँ हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम समझ लो कि रिवर्स में जा रहे हैं। जहाँ हमने पहले सर्वलेट और जेएसपी देखे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करी, फिर हाइब्रिड पे आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करी। यहाँ पे मैनुअली सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी मैनुअल चीज़ें दब जाएंगी और ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएंगी, जो स्प्रिंग बूट करता है। टाइम बचाता है, और प्लस जिसको पता है कि हाइब्रिड कैसे काम करता है, स्प्रिंग एमवीसी कैसे काम करता है, स्प्रिंग कोर कैसे काम करता है, तो उनके लिए ईजी काम करना। तो यहाँ पे अब बॉय का ऑब्जेक्ट हम सेव कर देंगे, बस इतना ही काम करना है। कई बार कुछ और करना पड़ता है, पहले वो ट्राई करते हैं, इतना से काम होता नहीं होता, अदरवाइज वी विल यूज द सेकंड मैकेनिज्म। पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेटा आपको डेटा बेस में सेव करना है, सो सिंपली गो फॉर सेशन डॉट सेव मेथड। ओके, एक बार फिर से कोड को रन करते हैं, रन एज एप्लीकेशन, देखते हैं क्या होता है। इफ एवरीथिंग गोज फाइन वी शुड गेट अ इंसर्ट क्वेरी, जो कि हमें नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, जो भी चीज़ आई है इसको हम कहते हैं फ्लश करना। सेशन में होता है, ये देखना पड़ेगा किस में होता है ये, हाँ इसमें ही होता है फ्लश। ये हमने किया था आईओ पैकेज में गाइस, रिमेंबर फ्लश मेथड। कई बार डेटा राइट नहीं हो रहा था तो हमने फ्लश मेथड यूज़ किया था, ताकि पाइपलाइन क्लियर हो सके और डेटा हमारा फाइल पे जा सके। यस सर। सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने कह तो दिया सेशन डॉट सेव करो, मतलब हाइब्रिड को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जब ये ट्रांजेक्शन वगैरह क्रिएट करे तो जो ये ऑब्जेक्ट है बॉय इसको भी सेव करे। पर ये समझ लो कि कनेक्शन जो क्रिएट करता है पाइपलाइन टाइप की उसमें फंस गया है, तो हम उसको फ्लश कर देंगे, भाई जो भी सब एक दूसरे सिंक पर लेके जा। अगेन आई एम यूजिंग द टर्म सोर्स एंड सिंक। तो ओके, हमने फ्लश कर दिया जो भी कंटेंट था, कि एंड तक लेके जाएगा, वो फ्लश करेगा उसको, बीच में नहीं छोड़ेगा। पाइपलाइन बीच में डेटा लोड कर लेता है। अब देखो यहाँ पे आ गया डेटा, इंसर्ट इनटू बॉय और नेम इज आईडी। तो यहाँ पर ये सेम क्वेरी रिटर्न कर रहा है जो हमने कभी खुद से लिखी थी JDBC API में, insert into this। और if you notice I'm going to refresh the table, okay, refresh, and here we are, see डेटा आ गया डेटाबेस में।
मैंने कहीं भी एक भी सिंगल एसक्यूएल स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ना टेबल को क्रिएट करने के लिए, ना ही टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए। हाइबरनेट इज डूइंग दैट पार्ट फॉर अस। सो इनिशियली सेटअप करना पड़ा, वो थोड़ा ट्रिकी टास्क है, पर वो वन टाइम है। ये यूटिल क्लास आपको वन टाइम ऐड करनी है, खत्म काम। कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम ऐड करनी है, खत्म काम। अब जितनी बार आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट है, बॉय क्लास हो, गर्ल क्लास हो, मैन वुमेन, जो भी एंटिटी आप सोच सकते हो, क्रिएट करो, उसको सेव करो। सो दैट्स हाउ वी एग्जीक्यूट हाइब्रिड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जितना मैंने बताया उसमें से क्वेश्चन पूछो। ये क्या है, क्यों है, थोड़ा उस बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जितना मैंने किया वो क्लियर नहीं है, या फिर कुछ और डाउट है वो पूछो। या तो कुछ समझ नहीं आया, मुझे लग रहा है सब ऊपर से गया, बाउंसर गया क्या सारा कुछ। रिपीट करते कोई बात नहीं, अगर जा रहा तो बोल दो भाई, नहीं आया समझ में क्या दिक्कत है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा, नहीं आया सर ये समझ में। जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड स्टेप है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ये मतलब ये काम कैसे कर रहा है सर? थर्ड कौन सा, ये वाला। ये जो ये सर। मैंने आपको डेटाबेस का एक हल्का सा ओवरव्यू दिया ना, कि जब डेटाबेस पे काम करते हैं तो हम जितने भी क्वेरीज परफॉर्म करते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, तो उसको हम डेटाबेस टर्म में कहते हैं ट्रांजेक्शन परफॉर्म करिए हमने। तो ये transaction means the operation which we are going to perform on database or in database. So something similar we have to acquire in Hibernate as well. जो यहाँ से एक insert की query trigger हुई है, वो किसी ने तो करी होगी. So that this interface is responsible for that, to trigger all the queries from your class. It could be tester class or it could be any other service class. This class is responsible for taking your data. This time the data is one and manan from my Java file to database. So transaction is data को acquire करता है और end तक लेके जाता है, and we are forcing it to send it to the sink जो database का table है। तो इसका काम इतना है कि आपके database को travel करा के इस Java फाइल से database के table तक लेके जाए। और जैसा मैं लिखा पे begin transaction, तो that means we can now start working with all the operations of database। यहाँ पे हमने सिर्फ एक insert query चलाई है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो कल हम बाकी के जो ऑपरेशन है, करंट ऑपरेशन, वो परफॉर्म कर लेंगे सेम क्लास के साथ। इंसर्ट हो चुका है तो सिलेक्ट भी कर देखेंगे, अपडेट भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे। इट्स ऑल अबाउट मेथड्स। यहाँ पे भी मेथड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ क्लासेस याद रखनी है, और काम खत्म। जितनी बार याद करोगे, मतलब कोड लिखोगे, याद हो जाएगा ये। तो ट्रांसफर का काम यही है, डेटा ट्रांसफर करना एक तरह से, कि आपके जो भी एक लॉजिकल कनेक्शन यहाँ पे बना के रखा है, लॉजिकल डेटा जिस पे काम कर रहे हो, वो डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना। तो यहाँ पेज तो है नहीं, तो ये दो एंड्स हैं, जावा एंड और डेटाबेस एंड। तो जावा एंड से डेटाबेस के एंड तक लेके जाना, इसका काम ये है। सर, जब हम बोलिए। प्राइमरी की बना रहे हैं आईडी को, तो वहाँ पे एडिग्रेट आईडी लिख रहे हैं, इनोटेशन आइडेंटिफायर जब बना रहे हैं तो हाँ जी। अगर सर नेम को बनाएंगे तो एडिग्रेट नेम लिखेंगे यहाँ पे? कभी स्ट्रिंग को आपने प्राइमरी की बनाया है? नो सर। तो बनाओगे नहीं तो। भाई, आईडी के अलावा कुछ हो जो कुछ हमें और मतलब जैसे, प्राइमरी की बनाना हो। हाँ तो देखो प्राइमरी की कितनी होती है टेबल में, यहाँ पे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी जरूरी है, वरना कुछ भी दिमाग में आता रहेगा। जैसे आपने पूछा कि और क्या, जैसे मतलब कोई और कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, बना लो, कोई इशू नहीं है, कुछ और कॉलम सोच लो इसमें। पर हम प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग या फिर इन टाइप की आईडीज को या फिर कॉलम्स को हम प्राइमरी की बनाते हैं। यस सर, डेटाबेस जैसे में की बाय प्राइमरी की होती या है, तो आईडी यूज की कर लो। जगह पे हम रजिस्ट्रेशन दे दिया और लॉन्ग में दे दिए तो उसे हाँ वो यूज कर लो, एडिग्रेट। बिल्कुल कर सकते हो। वही मैं। टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, तो किसी एक को यस बना लो। सर। अब कोई सोचे कि यार मैं दो तीन प्राइमरी की बना दूं, तो या तो उसको डेटाबेस ही नहीं आती है फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हाइब्रिड कैसे कर लेगा। एज पर द डेटाबेस वी हैव टू क्रिएट ओनली वन प्राइमरी की विच यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस, है ना। तो यस सर। एट एंट्रेशन लगा दीजिए। मोस्टली 99% केस में हम इंट या लॉन्ग टाइप पर ही आईडी एंट्रेशन लगाते हैं, स्ट्रिंग पे नहीं लगाते। स्ट्रिंग का कभी देखोगे नहीं कि स्ट्रिंग, क्योंकि थिंक अबाउट, मुझे डेटा गेट करना है, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार समथिंग वेयर आईडी इज टू 1 2 3 4 समथिंग, और मैं उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। जैसे ही स्ट्रिंग आ गया, मैं वहाँ पे प्लस माइनस कैसे कर पाऊंगा। तो मैं तो अपने लिए हर्डल पैदा कर दे रहा हूँ, जो इशू नहीं था मैं उसको वापस से रेज कर दे रहा हूँ, मतलब खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा हूँ, कि स्ट्रिंग टाइप को मैंने प्राइमरी की बना दिया। तो कभी मुझे रिक्वायरमेंट आई कि मैं वन बाय वन कुछ टॉप 10 या टॉप 20 रिकॉर्ड्स प्रोसेस करना चाह रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ आईडी, जो मैं इंक्रीमेंट कर सकूँ, तो वो तो कर ही नहीं पाऊंगा, कभी लॉजिक लिख ही नहीं पाऊंगा स्ट्रिंग पर। तो मैं अननेसेसरी मुझे कैरेक्टर वाइज जाना पड़ेगा और कैरेक्टर पे इंक्रीमेंट और फिर वो सब करना पड़ेगा। बिना बात का हेडेक क्यों लेना, सिंपल इंट या लॉन्ग इन पे रखो। कभी हम फ्लोट में प्राइमरी कीज नहीं यूज करते, कभी स्ट्रिंग में रखते, कभी कैरेक्टर पे रखते।
इंट लॉन्ग विदाउट डेसिमल आपको वैल्यूज यूज करनी है जो प्राइमरी की एक्ट कर सके। तो यहाँ पे बुलियन वगैरह मत ट्राई कर देना कि कैरेक्टर में बहुत से टाइप होते हैं, मैं बुलियन को बनाऊंगा प्राइमरी की, है ना। वो तो ट्रू और फॉल्स होगा, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक ये क्लास था। चलो तो एक रिवाइज कर लेते हैं वापस से क्या क्या करा हमने। कोई पूछ नहीं रहा तो मैं खुद ही बता देता हूँ। एक रिवीजन कर लेते हैं। तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया कि हमें एक हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाना है इक्लिप्स में। ये आई नहीं है, ये नो होगा। सो हाइब्रिड ऐप इन इक्लिप्स। ओके, सो first step was create a Maven project, right? That we have done. Then add a Hibernate and MySQL related dependencies. तो हम Hibernate का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो डेफिनेटली Hibernate का वर्जन डालना पड़ेगा। ये आप किसी भी जगह से उठा सकते हो। As of now we are using Hibernate 5. So एक पर्टिकुलर वर्जन है जो compatible है Java 8 के साथ। अभी तक still we are using Java 8. You guys can see here. Java 8 is here. तो यहाँ पर ये हो गया। तो हमने MySQL का वर्जन और हाइब्रिड का वर्जन ऐड कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप इज ऑल्सो डन। ये हमने ऑलरेडी कल कर चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पोजो क्लास बनाया। तो पोजो क्लास को हम एंटिटी भी कहते हैं हाइब्रिड में, और हाइब्रिड डील्स इन एंटिटीज। सो हाइब्रिड वोंट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ये तो एक नॉर्मल क्लास है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज एंटिटी एनोटेशन। तो एनोटेशन लगा दिया क्लास के टॉप पर, और एट आईडी लगा दिया प्राइमरी की पर, क्योंकि जब भी आप हाइब्रिड के थ्रू एक टेबल बनाओगे, हाइब्रिड नीड्स प्राइमरी की। विदाउट इट यू कैन नॉट प्रोसेस फर्दर। इट विल गिव यू एक्सेप्शन कि आइडेंटिफायर इज मिसिंग। सो यहाँ पे ये भी बना दिया हमने, दो एनोटेशन लगा दिए, एंटिटी और आईडी। नाउ दिस क्लास, दिस सिंपल जो क्लास बिकम्स एंटिटी क्लास। थर्ड स्टेप भी हो गया। फोर्थ स्टेप पे हमने कॉन्फ़िगर किया हाइबरनेट की फाइल को, hibernate.cfg.xml फाइल। अभी तक हमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आई इस फाइल में कि अगर आप डेटाबेस का कनेक्शन देना है, एक्चुअली दो चीज़ समझ में आई है। पहला ये कि अगर आपको डेटाबेस का कनेक्शन देना है तो यहाँ पे देना होगा 30 टैग्स में। और ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुछ और लिख लो, कनेक्शन डॉट अपना नाम लिख दिया, नहीं। यहाँ फिक्स्ड है चीज़ें कि कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास ही लिखना है। ड्राइवर के बाद अंडरस्कोर तो अंडरस्कोर ही लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें रिजर्व्ड हैं, फिक्स्ड हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। क्या जैसे अगर आपको क्लास का नाम कोई भी जावा में क्लास बनानी है तो लिखोगे पब्लिक क्लास देन क्लास का नाम। आप उसको उल्टा सीधा नहीं कर सकते, वो एक सिंटैक्स है। लाइकवाइज हियर हाइबरनेट के खुद के सिंटैक्स है जो आपको फॉलो करना है, जैसे रूल्स कहते हैं हम लोग, है ना। तो जावा के रूल, हाइबरनेट का रूल ये कहता है कि जब आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हो डेटाबेस के लिए तो उसको इसी कीज में एंटर करो। ये नेम एक्ट एज अ की एंड वट एवर वैल्यू पासिंग दैट एक्ट एज अ वैल्यू। तो ये क्या है, डीपी कॉन्फिग सही है। तो पहली चीज़ हमें ये पता चली। बाकी बीच में क्या है वो बाद में देखेंगे, पढ़ के समझ सको तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, दिस वन, जो भी आपने एंटिटी क्लास पिछले स्टेप, ये थर्ड स्टेप में बनाई थी, उसको रजिस्टर करना है। तो ये हमें समझ आया कि मैप करना है या रजिस्टर करना है डेटाबेस में, तो हम यूज़ करेंगे मैपिंग टैग को। तो वहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम देना है उस क्लास का, उस एंटिटी क्लास का, एंड देन इट विल वर्क। व्हाट वी कॉल दिस, गिव द fully qualified name of the entity class. Okay, so this is also done। फोर्थ स्टेप भी क्लियर हो गया, बाकी चीज़ कल देखेंगे। फिफ्थ स्टेप, अब इसके लिए एक टेस्ट एफ बनाएंगे। तो हमने क्या करा, एक सिंपल जावा क्लास बनाई, उससे मेन मेथड रखा और उसके तीन स्टेप्स फॉलो करे कि पहले सेशन फैक्ट्री बनाना है, फिर सेशन बनाना है, और अल्टीमेटली हमें ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। ट्रांजेक्शन अल्टीमेट गोल वॉज बिगिन द ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन ही है जो अल्टीमेटली आपकी क्वेरीज को रन करता है बैकएंड पर। तो हमें सेशन एक्वायर करना था ताकि हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकें। तो जैसे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, आपका काम खत्म, यहाँ से हाइब्रिड पिक कर लेगा, जो भी स्टेप्स थे उसको रन कर देगा। बीच में एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो इसका था, वो यूटिलिटी वगैरह का, तो इस पर हमें नहीं जाना, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो स्टेप में स्किप सीधा कर दिया टेस्ट फाइल पे। बाकी चीज़ें फिर पता ही है, फिर तो कोड रन करना है। और इतना करने पर आपको एक टेबल क्रिएट कर देगा डेटाबेस में हाइबरनेट, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी मैप्ड है एज एंटिटी क्लास। एंड हाइब्रिड मेक श्योर दैट जितने भी आपके पास एंटिटी क्लासेस हैं प्रोजेक्ट में, उन सब के करस्पॉन्डिंग टेबल क्रिएट हो। ठीक है, तभी तो डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे इधर से उधर। जो भी क्लास आपकी मार्क्ड है एट एंटिटी एनोटेशन से, वो सारी डेटाबेस में जाके मैप हो जाएंगी एज अ टेबल। उसके बाद फर्दर अब हमसे रिकॉर्ड चाहिए, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें इस क्लास को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा ऐसे। और अगर ये सब करके आप कोड को रन करते हो, सो यू विल गेट दिस आउटपुट ऑन योर कंसोल। इतना कोड निकाल लेते हैं यहाँ से, हटो हटो हटो, इतना। If everything was fine, you should get this message on your console कि एक insert code ट्रिगर हुई है जिसमें
इंसर्ट क्वेरी साफ साफ दिख रही है कि हाइबरनेट ने क्वेरी इंसर्ट करी, सॉरी रिकॉर्ड इंसर्ट किया थ्रू इंसर्ट क्वेरी। और डेटाबेस की बात करें तो रिकॉर्ड ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो जो भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया होगा पोजो क्लास के सेटअप गेटर में या फिर एंटिटी क्लास के सेटअप गेटर में, वो यहाँ मिल रहा है आपको। और टेबल का नाम है बॉय टेबल। खत्म। तो करना क्या है आपको, एक बार वापस से इस वीडियो को देखो, रिपीट करो। जैसे मैंने बॉय क्लास बनाई है, 2-3 क्लास खुद की क्लास बना लो। ओके, तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, लास्ट में छुटा देता हूँ होमवर्क। पहला होमवर्क ये है, थ्योरी पार्ट है, व्हाट इज एनोटेशन। ये पढ़ के आइए, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एनोटेशन क्या होते हैं। उसके बाद इसमें ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेपीए। ये पढ़ के आइए जेपीए क्या होता है। देन ट्राई try to create more wow, class and map them in db। ठीक है, इतना ट्राई करके आइए। तो फॉर एग्जांपल इट कुड बी गर्ल क्लास, जैसे बॉय क्लास बनी है ऐसे एक गर्ल क्लास बना लीजिए। अप टू यू गाइस, जो भी समझ में आए वैसे कर लीजिए। मैन, वुमेन, एटसेट्रा, जो भी आपके दिमाग में है वो ट्राई कर लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन ट्राई करके आइए। 2 थ्योरेटिकल पार्ट है और लास्ट वाला एग्जाम्पल कोडिंग वाला है। तो आई होप होमवर्क समझ में आ गया होगा। कोई इसमें डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल कनेक्ट करते हैं और हाइब्रिड नो को सर। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके शुभम, यस सर। ऑल गुड। यस सर। चलो ठीक है, खुशबू क्या कहते हो, आए समझ में यस कुछ? सर। यस सर आया। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल ट्राई करिए, प्लस थ्योरी पार्ट जरूर कर लीजिएगा। कल मिलते हैं। ओके।